اب ہم دوسرے حصے میں دوسرے پارٹ میں پڑھیں گے اسم علم کی قسمیں۔ اسم علم کی 5 قسمیں ہیں: خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف۔ خطاب، اب ہم پڑھیں گے خطاب کسے کہتے ہیں۔ خطاب وہ اسم ہیں جو حکومت یا بادشاہی دربار میں معزز لوگوں کو ملے، مثلاً سر نائٹ خان بہادر، شمس العلماء راہ بہادر خان صاحب، رستم ہند وغیرہ۔ مطلب خطاب اس اسم کو کہا جاتا ہے جو حکومت کی طرف سے یا شاہی مطلب جو بادشاہ کی طرف سے معزز عزت دار لوگوں کو ملتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خطاب۔ مثلاً سر نائٹ خان بہادر، شمس العلماء راہ بہادر خان صاحب، رستم ہند وغیرہ، ان کو خطاب دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے یا بادشاہ کی طرف سے۔ اب لقب کسے کہتے ہیں؟ ایسے نام جو کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو۔ لقب ایسے نام ہے جو کسی خاص وصف یعنی کسی خاص ہنر کی وجہ سے یا کسی خاص مقصد کی وجہ سے مشہور ہو۔ مثلاً کلیم اللہ حضرت موسیٰ کا لقب ہے، یعنی کلیم اللہ حضرت موسیٰ کا لقب کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ جو کس وصف مطلب مقصد سے کس مقصد سے رکھا گیا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ جو ہے اللہ سے کیا کرتے تھے؟ کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ کو کیا رکھا؟ کلیم اللہ۔ سرحدی گاندھی، یہ عبدالغفار خان کو سرحدی گاندھی کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ وہ ایک فریڈم فائٹر تھا، کیونکہ وہ اپنی آزادی حکومت کو مطلب اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے لڑتے تھے، تو اس کو کیا رکھا گیا؟ سرحدی گاندھی۔ اسی طرح خالد کشمیری، بخشی غلام محمد کو رکھا گیا وغیرہ۔ اب تخلص کسے کہتے ہیں؟ وہ مختصر سا نام جو شعراء اپنے اصلی نام کے بجائے شاعری میں استعمال کرتے ہیں، مثلاً رگھوپتی سائے، فراق گورکھپوری، سردار جعفری، نون میم رشید، غالب اقبال وغیرہ۔ یعنی تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص اس مختصر سا نام کو کہتے ہیں جو شعراء جو ہے کیا کرتے ہیں؟ اپنے شعر میں استعمال کرتے ہیں، اپنے اصلی نام کے بجائے شعر میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً رگھوپتی سائے کیا ہے؟ رگھوپتی سائے ایک شاعر کا کیا ہے؟ تخلص ہے۔ فراق گورکھپوری کا تخلص ہے۔ سردار جعفری یعنی سردار جعفری کا لقب جعفری ہے، تخلص جعفری ہے۔ نون میم رشید کا تخلص جو ہے رشید ہے۔ غالب، اسی طرح اقبال وغیرہ جو ہے تخلص ہے، جو شعراء کیا کرتے ہیں؟ اپنے شعر میں اپنے اصلی نام کی جگہ پر کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کنیت، عرب میں عام طور پر بیٹے یا باپ کی نسبت سے کسی کا نام لیا جاتا ہے، مثلاً ابو حنیفہ، ابن عمر وغیرہ۔ یعنی عرب میں کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر بیٹے کی نسبت سے یعنی بیٹے کے حساب سے نام لیا جاتا ہے یا باپ کے حساب سے نام لیا جاتا ہے، جیسے مثلاً ابو حنیفہ مطلب حنیفہ کا باپ، اسی طرح باپ کی نسبت سے یعنی بیٹے کی نسبت سے نام لیا جاتا ہے، ابن عمر یعنی عمر کا بیٹا وغیرہ۔ عروف کیا ہے؟ اب عروف وہ نام ہے جو محبت یا حقارت یا اختصار کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو۔ عروف اس نام کو کہا جاتا ہے جو محبت کے حساب سے رکھے جاتے ہیں ہم، یعنی چسمین تقبہ، یا حقارت کے نام سے رکھے جاتے ہیں، یا حقارت مطلب کسی کو کیا کرنے کے نفرت کے حساب سے رکھا جاتا ہے، جو مطلب پھیسمین تقبہ، یا اختصار یعنی شارٹ کر کے مختصر کر کے رکھے جاتے ہیں، نام کو مختصر طور پر لیا جاتا ہے، شارٹ کر کے لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عروف، جو اس کی ان وجہ سے کیا ہو؟ مشہور ہو لوگوں میں، مثلاً جگہ پہلوان، مولوی مکھن، میاں مٹھو وغیرہ جو ہے کیا ہے؟ یہ عروف ہے۔ اب اسم نکرہ کی قسمیں پڑھیں گے۔ ہم نے ابھی تک کیا پڑھا تھا؟ اسم معرفہ کی قسمیں۔ اب ہم پڑھیں گے اسم نکرہ کی قسمیں۔ اسم نکرہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم عام بھی کہا جاتا ہے۔ اسم نکرہ یا اسم عام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 9 قسمیں ہیں۔ اسم نکرہ ذات، استفہام، صفت، کنیہ، فاعل، مفعول، حالیہ، حاصل مصدر، معاوضہ۔ اب پڑھیں گے ہم اسم ذات وہ نام ہے جس سے کہ اس نام یا چیز کی تمیز دوسری یا قسم کی چیز یا نام سے نہ ہو، یعنی
जो है इसमें ज़ात किसको कहते हैं, ज़ात खुद को कहते हैं, जो क्या हो जिस नाम यानी मतलब जिस नाम से मतलब में जो नाम हम लिए जाते हैं मतलब या जो नाम होते हैं, जो चीज़ होता है, जो शख्स होता है, जो जगह होता है, जिसकी खुसूसियत यानी जिसकी क्या होता है तमीज़ जो है दूसरों में, दूसरी जगहों में, दूसरी चीज़ में, दूसरे आदमियों में नहीं पाया जाते, उसको कहा जाता है ज़ात। यानी हम अपने अंदर अपना अलग खुसूसियात होते हैं, उसके अंदर उसका अंदर अलग खुसूसियात होते हैं। इसी तरह मसलन बंदर, बंदर का क्या है अपना एक अलग ज़ात होता है, गधा का अपना अलग ज़ात होता है, ये दोनों जो सेम नहीं होता है, रात दिन इसी तरह अलग होता है, सुबह शाम इसी तरह अलग होता है, अपने खुद ज़ात होता है, उसको कहते हैं इसमें ज़ात। अब दूसरा इसमें इस्तिफ़हाम, इस्तिफ़हाम किससे कहते हैं, सवाल को कहते हैं। इसमें इस्तिफ़हाम वो इसमें है जो सवाल की जगह लिया जाए या सवाल के लिए बोला जाए, यानी इसमें इस्तिफ़हाम उस इसम को कहा जाता है जो हम किसी से सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किसी से कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं क्या कहते हैं इसमें इस्तिफ़हाम। मसलन कौन, कब, क्या वगैरह, ये जो है क्या हम ये अल्फाज जो हम क्या करते हैं सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें कनिया, कनिया के मानी इशारा है। ऐसे इसम में किसी नाम ताइदाद या मतलब की तरफ इशारा किया जाता है। अब क्या करते हैं इसमें कनिया, कनिया किससे कहते हैं, कनिया मतलब क्या है, इशारा है। ये ऐसे इसम है, इसमें कनिया जो है ऐसे इसम में क्या करते हैं, इस किस्म के इसम में क्या करते हैं किसी नाम की तरफ इशारा करने के लिए या किसी ताइदाद की तरफ, ताइदाद मतलब काउंटिंग, ताइदाद की तरफ या किसी मतलब की तरफ इशारा किया जाता है, उसको कहते हैं इसमें कनिया। मसलन फलान, फलान मतलब किसी शख्स की तरफ इशारा करने के लिए क्या करते हैं फलान इस्तेमाल किया जाता है। इतना, इतना मतलब हम किसी काउंटिंग मतलब काउंटिंग करते वक्त, हम गिनते वक्त क्या करते इतना बोलते, कितना बोलते वगैरह। इसी किसी मतलब किसी का मतलब ज़ाहिर करने के लिए क्या किसी को इस्तेमाल किया जाता है वगैरह। इसमें सिफ़त, इसी तरह इसमें सिफ़त क्या है, इसमें सिफ़त वो इसम जिसमें अच्छाई बुराई मिले, मसलन सुर्ख सफ़ेद, अच्छा बुरा, उल्टा सीधा वगैरह। इसमें सिफ़त किसको कहते, सिफ़त किसे कहते हैं, सिफ़त मतलब एडजेक्टिव, इंग्लिश में एडजेक्टिव, किसी की खूबी या खामी को इजहार करना। इसमें सिफ़त उस इसम को कहा जाता है किसी की बुराई या अच्छाई ज़ाहिर करने को क्या कहते हैं, इसमें सिफ़त कहते हैं। जैसे सुर्ख, सुर्ख क्या है, एक कलर का नाम, एक रंग का नाम है। सफ़ेद क्या है, एक रंग का नाम, ये एक क्या खुसूसियत है, मतलब एक सिफ़त है। अच्छा क्या है, एक सिफ़त है। बुरा क्या है, एक सिफ़त है। उल्टा क्या है, एक सिफ़त है। सीधा क्या है, एक सिफ़त है। इसमें फ़ाइल, इसी तरह वो इसम जो किसी मज़दर से बने और जिससे और वो चीज़ या आदमी ज़ाहिर हो जो कोई काम इख्तियार या बेख्तियारी में करता हो, मसलन खाने वाला, पीने वाला वगैरह। फ़ाइल किसको कहते हैं, फ़ाइल मतलब काम करने वाले को कहते हैं। इसमें फ़ाइल जो वो इसमें है जो किससे बनता है, मज़दर से बनते हैं, और ये जो है क्या करते हैं, ये मतलब काम करने वाले को ज़ाहिर करते हैं, जो क्या जो कोई काम जो इख्तियार में करते हैं या अपनी बेख्तियारी में करते हैं, ख़ुद के इख्तियार में हो या ख़ुद के इख्तियार में ना हो, जो काम करते हैं उसको कहते हैं क्या, इसमें फ़ाइल। मसलन खाने वाला, खाने वाला क्या है, कोई काम कर रहा है खाने वाला, पीने वाला वगैरह, ये जो कोई काम करने वाले को ज़ाहिर करे उसको क्या कहते हैं, इसमें फ़ाइल। इसी तरह इसमें मफ़ऊल वो इसम है जो इस ज़ात पर दलालत करे जिस पर फ़ेल वाक़या हो, यानी इसमें मफ़ऊल उस इसम को कहा जाता है जिस पर क्या हो, कोई काम वाक़या हो। फ़ेल मतलब काम, कोई काम वाक़या हो, मसलन लाया हुआ, आया हुआ, परवरदा वगैरह, ये क्या है इसमें मफ़ऊल है। अब इसमें हालिया वो इसम जो फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत और कैफियत को ज़ाहिर करे। इसमें हालिया किसको कहते हैं, हालिया मतलब किसी की हालत को ज़ाहिर करना। इसमें वो इसम है जो फ़ाइल यानी काम करने वाले को या मफ़ऊल जिस पर कोई काम हो रहा है उसकी हालात और उसकी कैफियत को ज़ाहिर करे, उसको क्या कहते हैं, इसमें हालिया कहते हैं। मसलन मुस्कुराता, किसी के फ़ाइल का काम करने वाले का क्या किया, हालत ज़ाहिर किया। हंसता, गिरता, पड़ता वगैरह। हासिल मज़दर लफ्ज़ जो किसी फ़ेल के असर से कोई कैफियत ज़ाहिर करे, यानी हासिल मज़दर ऐसे लफ्ज़ है जो किसी फ़ेल के असर से, किसी काम के असर से कोई कैफियत हालात ज़ाहिर करे, और ये हासिल मज़दर जो है क्या होता है, मज़दर से बनता है। जैसे तड़पना क्या है, मज़दर तड़पना से क्या बना, तड़प हासिल मज़दर। चढ़ना क्या है, चढ़ना जो है क्या है, मज़दर है क्योंकि इसके आखिर में ना है और साथ साथ
क्या है, किसी काम है, काम का मानी देता है। चढ़ना से क्या बना, चढ़ाओ हासिल मज़दर। दौड़ना से क्या बना, दौड़ाओ, दौड़ हासिल मज़दर। इसी तरह इसम मुआविज़ा, इसम मुआविज़ा वो इसम जो किसी खिदमत या मेहनत का मुआवजा ज़ाहिर करे, यानी क्या करे, इसम मुआवजा उसको कहा जाता है जो किसी क्या करे, जो किसी खिदमत का, जो कोई खिदमत करता है या कोई मेहनत करता है उसके मुआवजा ज़ाहिर करे, यानी उसकी खिदमत को ज़ाहिर करे, उसकी मेहनत को ज़ाहिर करे। मसलन रंगाई, सिलाई, धुलाई वगैरह। रंगाई किसी रंग करने वाले का, सिलाई किसी सिलाई करने वाले का, धुलाई किसी धुलाई करने वाले का क्या किया, मेहनत ज़ाहिर किया।